حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم پریشان ہو، میں بھی پریشان ہوں، اس لیے سوچتا ہوں کہ تم سے ہم اپنی پریشانی بیان کریں اور تم ہم سے اپنی کرو، ہم دونوں ایک دوسرے کا درد بانٹ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا نا کہ آپ بھی پریشان ہو ہم بھی پریشان ہو، تو دونوں بیٹھ کے چلو اپنا وقت پاس کر لیں۔ اب جیل میں آپ جائیے کبھی تو ایسے ہی ہوگا نا، آپ بھی قیدی ہم بھی قیدی، تم اپنی داستان سناؤ ہم اپنی سنائیں، تم کیوں آئے ہو ہم کیوں آئے ہیں، اسی ٹائم پاس کرنے کا ایک بہانہ چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق کو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کا درد جاننے کے لیے بیٹھ گئے۔ بتاؤ صحیح کیا پریشانی، پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب جب تم اتنا کہہ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میری بیوی کو تکلیف ہے، درد ہے۔ ڈیلیوری کے وقت عورت کو جو درد ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت وہ ہو رہا ہے، اور یہاں بارش ہو رہی ہے، گاؤں میں کوئی دایا نہیں مل رہی ہے۔ اس زمانے میں عورتیں ہی آیا کرتی تھیں گھروں میں اور تیل کی مالش وغیرہ کر کے بچے کی ڈیلیوری کر دیا کرتی تھی، آج کل کی طرح ہاسپٹل نہیں تھے۔ بارش ہو رہی ہے، میں کہاں جاؤں، میری بیوی کو درد ہو رہا ہے، بچے کی ڈیلیوری کا درد ہے، میں پریشان ہوں کہ میں کہاں جاؤں، گاؤں میں کوئی دایا نہیں مل رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا بس اتنی سی بات ہے، انسانیت دیکھیے، کہ رکو آتا ہوں، یہ کام تو میری بیوی کرنا جانتی ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو اٹھایا۔ بیوی کہتی اتنی رات میں آپ مجھے اٹھا رہے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں۔ کہا بیوی آج ایک نیک کام ہے، کیا ثواب نہیں کماؤ گی؟ غیر مسلم کی خدمت کرنے کو ثواب۔ بیوی نے کہا اگر ثواب کی بات ہے تو بتائیے کیا ہے؟ کہا آج فلاں جگہ پہ ایک مجوسی یا یہودی، اس کی بیوی کو ڈیلیوری کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونا ہے، دایا نہیں مل رہی ہے۔ چلی جلدی سے تیل لیا اور کپڑا لیا۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی امیر المومنین کے ساتھ اس گھر پر آتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیے اپنے دوست کے پاس، میں ان کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں۔ اندر جاتی ہیں، مالش وغیرہ کرتی ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے رونے کی آواز امیر المومنین کے کانوں میں بھی جاتی ہے اور اس آدمی کے کانوں میں بھی جو دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے کہا آتیکا کیا ڈیلیوری نارمل ہے؟ ٹھیک ہے، زچہ بچہ دونوں ٹھیک ہیں؟ اندر سے آواز آتی ہے جی دونوں ٹھیک ہیں۔ امیر المومنین اپنے دوست سے کہیے کہ اوپر والے نے تمہیں لڑکے کی نعمت سے نوازا ہے، تمہیں لڑکا ہوا ہے۔ امیر المومنین کا لفظ جب امیر المومنین کی بیوی گھر کے اندر سے بولتی ہے کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارے گھر میں لڑکا ہوا ہے، تو اس گھر کا مالک دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں لوگوں نے مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے، حقیقت یہ کہ میں خادم المومنین ہوں، خادم الناس ہوں، میں تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے امیر بنا ہوں، آپ ڈرو نہیں۔ رات کے اندر معلوم کرنا اور پتہ لگانا یہ میری ذمہ داری تھی۔ ارے تم ہماری قوم کے نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا، ہو تو انسان، یہ خدمت کرنا ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پر لا کر سوچئے کہ امیر المومنین کی بیوی رات کی تاریکی میں ایک شخص کے گھر جاتی ہیں، اس کی بیوی کو ڈیلیوری ہوتی ہے اور کہتی ہیں امیر المومنین تمہارے دوست کو بچہ ہوا ہے۔ اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کون سا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے۔ انسانیت کی اس معراج کا نام اسلام ہے۔
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक ही मर्द से और एक ही औरत से, एक ही पुरुष से और एक ही स्त्री से हमने तुमको जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ की औलाद हो। कुरान ने तो एक खानदान बताया है, एक कुटुंब बताया है कि तुम सबका बाप एक है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जब तुम सबका बाप एक है तो फिर झगड़ा कैसा है? इसी इंसानियत का नाम और इसी मानवता का नाम इस्लाम है, इसी मानवता का नाम। हमारी तकरीर अगर ये जी हिंदुस्तान वाला दे दे और इंडिया टीवी वाले दे दें तो आधे हिंदू तो बेचारे वैसे ही रास्ते पे जाने। इतना अच्छा इस्लाम ये देते नहीं है, काट काट के छांट छांट के दिखाते हैं कि ये देखो ये बोला गया है। या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। जिसको हमारे यहाँ आदम कहा गया उसी को हमारे हिंदू समुदाय में और हिंदू धर्म ग्रंथों में आशू कहा गया, मनु कहा गया। और जिसको हमारे यहाँ हव्वा, जिस स्त्री का नाम हव्वा बताया गया, उसी को वेदों में शतरूपा कहा गया। तुम उसी आशू की, आदम की, मनु की संतान हो और उसी शतरूपा के बेटे हो। तुम सबकी माँ एक है, तुम सबका बाप एक है। इससे ज्यादा मानवता, इससे ज्यादा इंसानियत और क्या होगी? एक बात सुन लीजिए, मौलाना जर्जी साहब अपने घर में किसको खाना खिलाएंगे? जो उनका दोस्त होगा। क्या मैं अपने दुश्मन को खाना खिला सकता हूं? ईमानदारी के साथ बताइए। अरे हम अपने दरवाजे से नहीं गुजरने देंगे, नजर रखेंगे। हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन हमारे दस्तरखान पर खाना नहीं खा सकता, ना हम उसको दावत देंगे। लेकिन ऊपर वाले को जरा देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरा देखो, जो नमाज पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसकी इबादत कर रहा है, उसको अपना रब मान रहा है, उसको भी खिला रहा है, जो नहीं मान रहा है वो उसको भी खिला रहा है, जो उसके आदेशों पे चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है, और जो उसके आदेशों पे नहीं चल रहा है वो उसको भी खिला रहा है। इसलिए पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों का खुदा हूं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, सारी प्रशंसाएं उस महान शक्ति के लिए, उस प्रभु के लिए, उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का पालन पोषण करने वाला है। उसने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ इंसान को देते हैं, हम मुसलमान को देते हैं। उसने कहा हम इंसान को दे, हिंदू को भी देते, मुसलमान को भी, सिख को भी और ईसाई को भी। जब उसने मतभेद नहीं किया है तो हम कौन होते हैं मतभेद करने वाले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको वेदों में ब्रह्म कहा गया है, उनके दस्तरखान पर एक मजूसी आग की पूजा करने वाला आया और बैठ गया। उसने खाने का लुकमा उठाया, कहा बिस्मिल्लाह। हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। उसने क्या कहा? बिस्मिल्लाह। आग के नाम से शुरू करता हूं, यानी आग को अपना खुदा बनाया। आग के नाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, लुकमा रख, रोटी रख, ये मेरे खुदा ने दी है, मेरे अल्लाह ने दी है, और तू आग का नाम लेता है, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा इब्राहिम नहीं लूंगा मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम, नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उठो, भागो, चलो, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। थोड़ी दूर गया, परशुराम आ गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरिश्ता आ गया, कहने लगा इब्राहिम अल्लाह ने कहा है उस 90 साल के बुढ़े को पकड़ के लाओ, खिलाओ। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता है। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे रब ने कहा है, उसने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, उसने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने उसको 90 साल तक खाना खिलाया है। उसने कभी अल्लाह की इबादत नहीं की, फिर भी अल्लाह ने उसको खाना खिलाया है। तुम्हारे दस्तरखान से कोई भूखा कैसे उठ सकता है? तुम नबी हो, ऋषि हो, पैगंबर हो, इंसानियत तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए। भूखा कोई भी हो वो भूखा नहीं उठना चाहिए तुम्हारे दस्तरखान से। खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको बुढ़े को पकड़ के लाए, दस्तरखान पे बिठाया और खिलाया, और क्या कहा? लो बैठो खाओ। उसने कहा अब क्या हुआ?
चिढ़ाने लगा, तंज मारने लगा। अब क्या हुआ? कहा मेरे रब ने कहा कि उसको खिलाओ। उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो एक दिन नहीं लिया और तुम बिदक गए, तुम उचक गए, तुम नाराज हो गए। खाओ मेरे रब की रहमत, मेरे रब की कृपा को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। उस बुढ़े ने कहा फिर मेरा रिश्ता भी अपने रब से जोड़ दो। जब 90 साल तक उसका नाम नहीं लिया और खिलाता रहा और आज भी भूखा नहीं उठने दिया है, जिब्राइल को भेजकर, फरिश्ते को भेजकर उसने बुलवा लिया मुझे। पहले उस रब से मेरा रिश्ता जोड़ो। हम किसको खिलाएंगे, किसको देंगे? ये इंसानियत है। कोई भूखा दस्तरखान से नहीं उठने पाए। हमारे अंदर कितनी इंसानियत है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा मानवता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा इस्लाम है, और जिसके अंदर मानवता की जितनी कमी है उसके अंदर इस्लाम उतना ही कम है। जो पड़ोस में रहने वाले को ये देखे कि हम खाना तब खिलाएंगे कि जब वो मुसलमान होगा, वरना नहीं तो वो मुसलमान नहीं है। अगर वो ये सोचे कि हम ये अपने बोतल खून की, अपनी एक बोतल खून उसको देंगे जो मुसलमान है, ये पड़ोस में रहने वाला एक हिंदू या ईसाई है, ये मेरे खून से बच सकता है, तो आप मुसलमान नहीं हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए आप, इस्लाम ये कहता है कि रोजा तोड़ना पड़े तोड़ दो, लेकिन एक मनुष्य की एक जान, इंसान की जान बचाओ। और जिसने एक इंसान की जान बचा ली, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक मनुष्य की, एक इंसान की जान बचा ली। अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक मनुष्य की जान बचा ली, उसने पूरे विश्व की जान बचा ली, उसने पूरी दुनिया की इंसानियत की जान बचा ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने अपनी कृपाएं और अपनी नियामतों में कभी बंटवारा नहीं किया। आप बताइए तो। दुनिया का कायदा है कि देखिए एहतिजाज तरफेन से होता है। हम किसी धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, तो धोबी उसके बदले में हमसे क्या लेता है? पैसे। ये माइक लगाया है जिसने, आपने पिंडाल ये सब लगवाया है, हम इसके मोहताज हैं। तो ये पिंडाल लगाने वाले, माइक लगाने वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम दुकान से जो चीजें खरीदते हैं हम उनके मोहताज हैं, लेकिन दुकान वाले भी हमारे मोहताज हैं कि वो हमसे पैसे लें। लेकिन जरा बताइए, हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, क्या सूरज हमारा मोहताज है? हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, क्या चांद हमारा मोहताज है? आसमान से बरसने वाली बारिश के हम मोहताज हैं, क्या बारिश हमारी मोहताज है? हवा जो चलती है ये, हम इसके मोहताज हैं, क्या हवा हमारी मोहताज है? नहीं। सोचिए तो सही, ईश्वर हमें मां के पेट में भी जिंदा रखता है जहां हवा नहीं पहुंचती, और मां के पेट से जब हम बाहर आते हैं तो उस वक्त जिंदगी गुजारने के, जीवन व्यतीत करने के जितने भी समाधान है वो पहले से मौजूद पाते हैं। एक सूरज का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, फिर पेट के अंदर भी औरत की एक बच्चेदानी, फिर उस बच्चेदानी से रहम का अंधेरा, तीन अंधेरों में बच्चे की परवरिश। लेकिन सोचो, जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, अभी उसने आंखें नहीं खोली हैं, अभी बाहर नहीं आया कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में दूध का इंतजाम पहले से कर दिया है। साइंटिस्ट से पूछो, जो मेडिकल वो करते हैं और बायो वगैरह पढ़े हैं, उनसे पूछो कि जब माँ की डिलीवरी होती है बीवी की और बच्चा पैदा होता है, तो माँ की पिस्तान के पास जहां से बच्चा दूध पीता है, छोटे छोटे हजारों सुराख होते हैं, वहां पर हजारों सुराख। बच्चा जब मुंह लगाता है तो उन सुराखों से उतना ही दूध आता है जितना बच्चे का लीवर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो छोटे छोटे सुराख ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मां की पिस्तान में न बनाए होते तो बच्चा दूध इतना भी चूस सकता था कि उसका लीवर खराब हो जाता और वो हजम नहीं कर सकता। लेकिन मां के पिस्तान में छोटे छोटे हजारों सुराख पैदा कर दिए, और बच्चा जब चूसता है तो एक एक कतरा, दो दो कतरा ही दूध आता है जो बच्चे के लीवर में जाता है, पेट में जाता है, और बच्चे का लीवर उसको हजम करता है। अभी बच्चा मां के पेट से बाहर आया,
भैंस का दूध नहीं पी सकता था, गाय का दूध नहीं पी सकता था, सबसे हल्के दूध की जरूरत थी, सबसे लाइट दूध की जरूरत थी। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी माँ के पिस्तान के अंदर वो दूध पहले से भर दिया। और ये ऊपर वाला ये नहीं देखता है ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का है, सिख का है या ईसाई का है, जैनी का है, क्रिश्चियन का है, किसका है, सबके साथ उसने ये मामला रखा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको समाधान मिलते जाते हैं। हम सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बिजली देती है तो रीडिंग की शक्ल में टैक्स लेती है, कितने यूनिट तुमने बिजली खर्च की है। गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से जो हम पंखे और एसी चलाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं कि हमने इतना यूनिट खर्च किया है, हवा इतनी इस्तेमाल की है। हम जो लाइट जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो पंखे और एसी की हवा लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। हम गवर्नमेंट के पानी से अपने खेतों में पानी देते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमसे कोई टैक्स नहीं मांगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर यह सूरज चमकाया, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज की हमें मिलती है। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा ओ मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें हवा दी है, उसने कभी नहीं कहा मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें और आपको बारिश दी है, बारिश आसमान से पानी हमें दिया, हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा तो ये मांगा ओ मेरे बंदो दिया मैंने तो शुक्र भी मेरा अदा कर, दिया मैंने तो मेरी गा हमद तारीफ प्रशंसा मेरी कर। बस इन तमाम चीजों के बदले में तू अपना माथा मेरे सामने झुका दे, मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी मेरे सामने रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ हमने अपनी इबादत के लिए, हमने अपनी पूजा के लिए तुझे पैदा किया। इतना सा भी हम नहीं कर सकते। मानवता और इंसानियत सीखिए कि क्या है। न्याय की बात हो तो मानवता देखिए, खिलाने पिलाने की बात हो तो मानवता देखिए। इस्लाम के हर कानून को हमें फॉलो करना है। इतना याद रखिएगा, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए, मानवता सबसे बड़ी सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक यहूदी का जनाजा आ रहा था और अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं। आपके अनुयायी, आपके मानने वाले, आपके सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के जनाजे को देखकर आप खड़े हो गए, मरने वाला तो यहूदी था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पढ़िए बुखारी शरीफ की हदीस चैप्टर देखिए। अल्लाह के नबी ने कहा मरने वाला यहूदी था तो क्या हुआ, इंसान तो था, मनुष्य तो था। क्या हम उसके गम में शरीक न हो? क्या हम उसके गम में शरीक न हो? क्या हम उसके गम में न जाएं? ये इंसानियत थी, ये मानवता का दर्स था। किसी के गम में बराबर का शरीक होना, किसी की बीमारी हो आप चले जाएं और उसका दुख दर्द बांट लें। मेरे भाइयों, यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। अल्लाह खिलाता है सबको, अल्लाह पिलाता है सबको। अल्लाह की दी हुई चीजों में कोई मतभेद नहीं है। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। देखिए एक एक शब्द की तरफ नजर डालिए तो आपको पता चलेगा। इस्लाम तो इतनी इंसानियत का धर्म है कि अगर आप इस्लाम के अंदर इंसानियत देखेंगे तो आप तड़प जाएंगे। आपके अंदर तजस्सुस जागेगा। गौर करो कि हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, रात के खटाटो अंधेरे के अंदर गश्त कर रहे हैं।
اور ایک آدمی کو جھونپڑی کے اپنے گھر کے باہر دیکھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن مانوتا دیکھیے آپ، انسانیت دیکھیے آپ، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن باہر گھر کے باہر رو رہا ہے. حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، پوچھتے ہیں اس سے کیوں رو رہے ہو؟ آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ واقعہ نکل گیا ذہن سے پوری تقریر بیکار ہو جائے گی. کیا رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے پاس جو بیٹھا ہے یہ کون ہے. اگر کوئی صحابی ہوتے تو وہ پہچانتے حضرت عمر فاروق کو، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، وہ غیر مسلم تھا، رو رہا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں تو نفرتیں بھری رہتی ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اور مسلمان بھی ہم ہیں، تب بھی ہمارے یہاں بھرا ہے شیر شاہ آبادی کون ہے، سورجا پوری کون ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، فلاں آگے کیوں بڑھ رہا ہے. ایک نبی کے ماننے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کو تسلیم کرنے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کرنے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک قبلے کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے والے، جب ہمارے اپنے اندر انسانیت نہیں رہے گی تو ہم دوسروں کو انسانیت کا درس کیسے دیں گے اور سبق کیسے دیں گے؟ یہی حضرت عمر ہیں.